प्रियंका का एक वर्ड, एक सेंटेंस मुझे कभी नहीं भूला कि जो दिखता है वही बिकता है। तो वो चीज मेरे दिमाग में इतनी सेट हुई कि हर जगह आई मेड इट अ पॉइंट टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स, गो पब्लिकली, जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे आई यूज टू बी देयर विद माय वर्कशॉप्स। मैंने अटेंड करी वो खाली प्रियंका देशमुख की करी, और किसी की डिजिटल मार्केटिंग पे मैंने वर्कशॉप अटेंड नहीं करी। एंड वॉट एवर प्रियंका ने टिप्स दिया मैंने उसको फॉलो किया। एंड एट दिस एज इज नेवर अ बैरियर फॉर एनीवन। जहां पे देर इज अ विल देर इज अ वे, True. but the problem is you become a bit slow, grasping becomes a bit slow। आपका जो आप जो टिप्स देते थे, हो सकता है कि वो टिप्स एक यंगर लेडी तुरंत उनको, क्योंकि वो कंप्यूटर पे सारा दिन रहते हैं, तो उनको। Welcome everyone. Today I am absolutely thrilled to have an inspiring woman with us. At nearly 70 years of young, she has proved that age is just a number. With the right determination, dedication and passion, and with the right guidance, anyone can start the business and make that profitable. अगर आप में वो पैशन है तो आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो शी इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ दैट। स्पेशल गेस्ट है, इनका नाम अरुणा चंद्रा जी है। वो पुणे के औंध एरिया में रहते हैं, जो अपने घर से ही ट्रेडिशनल वियर्स का बिजनेस करते हैं। उनके ब्रांड का नाम है ट्रेडिशनल्स, एंड वो जो कॉटन बेडशीट्स एंड चनिया चोली, ये सारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, वो सारी ट्रेडिशनल चीजें वो सेल करते हैं। So for that, she attended my workshops and challenges, and from that she learned different things like AI, sales funnels, digital marketing, and she started to implement those things in her business. My name is Priyanka Deshmukh, and I help women business owners to turn their passion into the profit with the help of AI, with sales funnel and digital marketing. ये एपिसोड को एंड तक देखिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो। Thank you, Priyanka, for adding me to the show. And I am Aruna Chandra from Traditionals, Aund, Pune. Amazing. So actually, Aruna ma'am, I would like to know about your journey कि आप ये ट्रेडिशनल्स के बिजनेस में कैसे आए, आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, तो we would like to know about that. Uh, After this is my second innings, and as soon as the children got settled, I wanted to do something of my own independently. So I was thinking, what should I do? Then I had a passion for traditional things. So I started this business by the name Traditionals, and I started with Kutch handicrafts. I had only Kutch handicrafts, but later on, when I was in the market, I was with people. I saw that Pune market needed chania cholis, and I grabbed the opportunity and I was the first one to start chania cholis in Pune 14 years back, Wow. almost. So So from that chania choli, I would like to share that Aruna ma'am ने last 30 days में 10 lakhs का business किया है by selling chania cholis only, and she is a real inspiration for us, really. thank you. Yes. So you were sharing how you came to this chania choli. हाँ, I started with Kutch handicrafts, then Kutch के ही products के साथ I added चनिया चोलीस, and later on मेरे को लगा कि people are getting bored with only Kutch handicrafts, so I started getting things from different parts of India, the best cottons from different parts of India, and I started traditionals. Start तो हो गया था, but आगे आगे बढ़ना शुरू हुआ धीरे धीरे। आई गॉट स्टफ फ्रॉम कश्मीर, आई गॉट बाग प्रिंट्स फ्रॉम एमपी, आई गॉट कलमकारी फ्रॉम बैंगलोर, एंड अलग अलग जगह के वेंडर्स ढूंढे एंड अलग अलग जगह का सामान आई स्टार्टेड सेलिंग। Wow.
Wow, so amazing. So you went to the different places. First उसका culture आपने समझा and वो सारी चीजें आपने आपके traditionals में include की. Amazing, Yes. amazing. And I would like to ask you कि can you walk us through your journey कि how did you get started? आपने ये सारी चीजें start कैसे की? तो ये जब आप journey start कर रहे थे, specially आपको challenges क्या आए उस time पे? Starting में तो I बहुत सारे challenges आते हैं हमें. तो what were yes, those challenges? I started by doing exhibitions basically. तो Okay. उसके थ्रू आई डेवलप्ड अ नेटवर्क और building the brand was a big challenge because many people were in the market. But building the brand, I did by maintaining the quality of products. And secondly, I stuck to only cottons. अलग अलग जगह से पहले जब भी मैंने कॉटन का कुछ मंगाया, आई यूज टू टेस्ट इट एट होम, ट्राई इट एट होम, एंड देन आई यूज टू ऑर्डर थिंग्स. सो दैट वे आई मेंटेन द क्वालिटी. एंड धीरे धीरे कस्टमर्स बनने लगे. And finding my niche was a big challenge for me, but it went on slowly. And धीरे धीरे लोगों ने मेरे products को पसंद किया. They had faith in my products. They referred to the friends and relatives. And इसी तरह करते करते now on today's date, I have almost 5,000 customers on my list. Wow. So this is the power of funnel. Actually, you have to be the database of your customer. सिर्फ जाके वहां पे एग्जीबिशन करके वापस नहीं आना है, तो उनका डेटा पूरा कलेक्ट आपके पास होना चाहिए एक्चुअली. एंड Yes. वो आपने बहुत अर्ली स्टेज से समझ में आई आपको वो चीज, और आपने वो हाँ. करना चालू कर दिया. अमेजिंग. That's great. So I would like to ask you. Sorry, I would like to ask you कि this is your, you shared your win with me before some days कि आपने 30 दिन में 10 लाख का बिजनेस किया by selling only चनिया चोलीज, चनिया चोलीज. So Yes. I would like to ask more about that कि how did you grow your business, and अभी ये जो 10 लाख का आपने प्रॉफिट का मतलब 10 लाख का सेल जो किया है टोटली, तो इसके लिए आपने कौन से स्ट्रैटेजीज यूज किए थे, कौन से मार्केटिंग टैक्टिक्स आपके लिए अच्छे से काम किए थे उसके लिए? Actually, in any business, Priyanka, we need to have dedication and perseverance. मेहनत बहुत करनी पड़ती है. बीच में I took a break of 4 months from last Diwali to February end. When I came back into business, मुझे लगा कि बहुत मेरा business सफर किया है and people are forgetting me. And I have to come back with a restart. And restart का मतलब था कि new fashions, new designs, and everything I could get in the market and what is trendy. So every day it was starting from June. I was studying Instagram. I was seeing Facebook. और सब जगह जहाँ पे मुझे चनिया चोलीज के ट्रेंडी डिजाइन्स, चनिया चोलीज का फैशन, चनिया चोलीज का जो चेंजेस आया है, वो सब मैंने स्टडी किया. और उसके बाद मैंने धीरे 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 करके एक एक मतलब लाइक एक डिजाइन ऑर्डर किया, फिर दूसरा डिजाइन ऑर्डर किया. बट ऐसे ही नहीं किया बल्क में, बहुत गॉट इट. मेहनत से एंड बहुत देख के. एंड दिस ईयर आई हैड a very very trendy collection along with the traditional ones. अमेजिंग. सो तो आपने आपके पॉइंट पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपने आपके पॉइंट पे कैलकुलेटेड रिस्क को चुना इंस्टेड ऑफ हाँ. जस्ट गो एंड ब्लाइंडली कि चलो उठा लेते हैं रिस्क. इसके अलावा यू जस्ट Yes. थॉट कि चलो टेक, लेट मी टेक द कैलकुलेटेड रिस्क. हाँ. यस. और मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट का सेल मोस्टली माउथ टू माउथ होता है, वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा होता है. एंड इफ यू प्लीज वन कस्टमर, other four drop in. And if you displease a customer, तो दूसरे चार और भी भाग जाते हैं. तो दिस वे वर्ड ऑफ माउथ से ही ज्यादा आपकी पब्लिसिटी होती है. एंड ईच एंड एवरी कस्टमर को आप पर्सनल अटेंशन देके
you can proceed further. यस दैट्स ट्रू, वही बोलते हैं ना, कस्टमर इज भगवान, भगवान के हाँ समान होता है हाँ कस्टमर, तो वो सेम बात हाँ है, दैट इज द yes सेम थिंग। यस। सो जैसे कि जैसे फ्रॉम लास्ट 15 years आप ट्रेडिशनल बिजनेस था आपका, देन यू हाँ आर स्टार्टेड यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग एंड द पावर ऑफ, यू अटेंडेड माय वर्कशॉप एंड एआई एंड वो सारी चीजें यू आर स्टार्टिंग एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज थिंग्स. So I would like to ask you कि how has digital marketing and social media help you to reach more customer and expand your business? डिजिटल आजकल तो पब्लिक डिजिटल ही हो गई है, तो जहां तक होता है लोग गूगल पे, इंस्टा पे एंड फेसबुक पे सर्च करके ही आपको रीच करते हैं। तो और दूसरा चीज, मेरे को प्रॉब्लम होता था कुछ कैप्शंस लिखने में, तो मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग के वर्कशॉप अटेंड किए, तो एआई को यूज करके आई कुड राइट बेटर कैप्शंस एंड मेरे को रील भी बनाना बेटर हुआ, मेरा इम्प्रूव हुआ। एंड उसके बाद प्रियंका का एक वर्ड, एक सेंटेंस मुझे कभी नहीं भूला कि जो दिखता है वही बिकता है। तो वो चीज मेरे दिमाग में इतनी सेट हुई कि हर जगह आई मेड इट अ पॉइंट टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स, गो पब्लिकली, जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे आई यूज टू बी देयर विद माय प्रेजेंटेशन, विद माय थिंग्स। एंड अगर प्रेजेंटेशन नहीं भी है, बिजनेस मीटिंग नहीं भी है, तो एटलीस्ट बी प्रेजेंट देयर सो दैट पीपल नो कि मैं कोई हूँ। घर में बैठ के बिजनेस नहीं हो सकता, True, true, पीपल विल नॉट नो यू। true. एंड आई एडेड माई बिजनेस ऑन गूगल। चनिया चोली जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूनिक है, हर शॉप में हर जगह आपको नहीं मिलेगा। एंड लोग गूगल पे बहुत सर्च करते हैं कि चनिया चोलीस कहाँ मिल रहा है। एंड वो जो है लाइक बहुत सारे शॉप्स का भी नाम आता है, बट मेरे यहाँ जो ट्रेडिशनल्स नाम है, मेरा ब्रांड ट्रेडिशनल्स के नाम से लोगों को ऐसे लगता है कि ट्रेडिशनल्स है तो चनिया चोली यहीं पे मिलेगा, दूसरी जगह हम शॉप पे जाएंगे तो शायद हमको घाघरा चोली मिलेगा जो Hmm. ट्रेंडी होता है। तो इसलिए बहुत लोग, people connected with me through Google. And even after the Navratri season, a lot of people are coming. Although I have finished my stuff, but still I have ordered a lot of new stuff for the people who are coming from foreign, कि उनको भी ले Wow, जाने के लिए कुछ रहे सामान। तो wow, amazing. हाँ So the things are जैसे कि आपने बताया ना कि you have to be everywhere. तो आपको yes पता नहीं है कौन कब, see people are silently watching you. वो yes if they are not commenting, if they are not liking your content, that doesn't mean कि वो आपको देख नहीं रहे हैं. They हाँ are observing you. exactly They are yes observing you. And हाँ जब ये आता है, मतलब जब आपका टाइम आएगा, then they will take from you, purchase from you. But हाँ you have to be इतने पेशेंस हम में होने चाहिए, and you are the true case study for that. थैंक So यू। हाँ amazing, you were everywhere, you are attending the events after events. And जैसे कि आपने मुझे एक बार कॉल करके बोला था कि प्रियंका, I want to learn how to do the reels, and for that can you take the 5 days or some kind of means you have attended one workshop, and after that you approach me. So उससे ही बाद we started that passion to profit challenge 5 days का. yes yes So the basically उसका origin भी, मतलब that I created that challenge just because of you, because you हाँ asked, थैंक यू। आपने पूछा था हाँ इसलिए वो हमने कर दिया. The thing is that अगर आप आपके क्लाइंट को समझेंगे ही नहीं, तो how you are generating the more products for them. हाँ हाँ Correct. Amazing. तो the I would like to ask one question. मैंने देखा है आप हर बार हर जगह ना, कुछ भी नया होता है तो आप सीखने के लिए जाते हो. yes You are having that kind of hunger in this age also. You want to attend and you want to grasp that knowledge from everywhere. yes So what role did mentorship and coaching play in your journey basically?
कोचिंग इनफैक्ट जो वर्कशॉप्स मैंने अटेंड करी वो खाली प्रियंका देशमुख की करी, और किसी की डिजिटल मार्केटिंग पे मैंने वर्कशॉप अटेंड नहीं करी। एंड वॉट एवर प्रियंका ने टिप्स दिया मैंने उसको फॉलो किया। एंड एट दिस एज इज नेवर अ बैरियर फॉर एनीवन। जहाँ पे देर इज अ विल देर इज अ वे। True. But the problem is you become a bit slow. Grasping becomes a bit slow. आपका जो आप जो टिप्स देते थे, हो सकता है कि वो टिप्स एक यंगर लेडी तुरंत उनको, क्योंकि वो कंप्यूटर पे सारा दिन रहते हैं, तो उनको इमीडिएटली समझता था। बट आई यूज टू लाइक प्रैक्टिस एंड देन हार नहीं माननी थी। लाइक आई हैड टू डू डिजिटल मार्केटिंग एंड आई डिड इट। मतलब नॉट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बट जितना मेरे बिजनेस को जरूरत था उतना मैंने आपका वर्कशॉप्स को, आपका जो कहना था कि एआई को फॉलो कर लो, फनल का जो था आइडिया, वो सब मैंने फॉलो किया। आपने कहा इंस्टा के थ्रू रील्स बनाओ, दैट ऑल्सो आई मेड। आई एम पहले मैं इन शॉर्ट और उधर से बनाती थी दूसरी जगह से, बट नाउ बिकॉज आई गेट द म्यूजिक, आई गेट एवरीथिंग, इफेक्ट्स वगैरह एवरीथिंग ऑन इंस्टा, तो आई एम मेकिंग मोस्ट ऑफ माई रील्स ऑन इंस्टा। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट हायर एनीबडी टू मेक माई रील्स, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट आज है, कल वो प्रिंट नहीं होगा। True. तो अगर मैं हायर करके रील्स बनाऊंगी तो दैट विल नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मी। इनफैक्ट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सो इसीलिए मैंने खुद ने आई ट्राइड एंड एवरी डे आई मेक डिफरेंट रील। चनिया चोलीज के टाइम एवरी डे जो प्रोडक्ट मेरे पास रह गए थे या जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किए, उनको एवरी डे आई वाज स्टॉपिंग अप एंड मेकिंग अ न्यू रील एंड गिविंग इट, सेंडिंग इट, पोस्टिंग इट, ऐसे कर रही थी। अमेजिंग एंड अमेजिंग। सो आपने जो बोला ना अभी कि एज के साथ ना थोड़ी चीजें स्लो हो जाती है in terms of हाँ grasping and all. So see, there are two kind of mindset people are having. एक होता है hunter mindset, मतलब अभी किया अभी मिल जाना चाहिए, okay, that is हाँ kind of a hunter mindset. And second type of mindset is farmer mindset, मतलब करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, बट उसका रिजल्ट ऐसे आएगा जैसे अभी आया है आपको। So हाँ this is all depend on your mindset. Age is just a number and you proved that. यस आई वांटेड टू प्रूव दैट, बिकॉज मुझे सब लोग बोलते हैं आप इस एज में क्या कर रहे हैं, आप इस एज में क्यों बिजनेस कर रहे हैं। तो वो चीज मतलब लाइक एक पैशन है True. हर चीज का। आई स्टार्टेड इट एज अ हॉबी बट इट बिकेम अ पैशन। एंड Wow, वंस amazing. अगर आप अपने पैशन को पूरा करना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आई Amazing. डिड वर्क हार्ड फॉर इट और बहुत Amazing. डेडिकेटेडली मैंने काम किया। लाइक बहुत ही ध्यान, हर रोज एटलीस्ट आई वाज गिविंग 2 to 3 hours फॉर सर्वे एंड डिसाइडिंग कि मुझे क्या करना है Wow. दैट वे। So you are too passionate about what you want to do, and that is the only reason you are now earning the profit. यस So every action is having equal and opposite reaction. आप जितना efforts डाल रहे हो उससे दो गुना आएगा, but you have to put that kind of efforts first. यस So जब आपने बोला था ना कि that came up with that passion to profit challenge, I shared that one 4-step framework in that challenge: clarity, plan, then optimize and scale. So you हाँ already having that kind of clarity कि मुझे मेरा ये passion है, tradition में मेरा passion है, आई एम हैविंग दिस यूनिक जो ऑथेंटिक कॉटन के बेडशीट से या फिर कॉटन के क्लोथ से, वो सारे मेरे पास है। यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी। देन सेकंड वाज प्लान। You are having that plan also. Now you are in that third stage, that optimize. You are already optimized that. Now the uh, step for you to scale. अभी जो 10 लाख बनाए हैं, नेक्स्ट ईयर वी हैव टू रीच मोर देन 50 lakhs. So that is the यस next goal to hit. यस And on होप that सो। journey, I'm with you. Yes. यस थैंक यू and प्रियंका। and I know that you can do that. You will do that. यस I know that. I have gained confidence
एंड बहुत इंडिपेंडेंट भी हुई हूँ मैं. लाइक कॉन्फिडेंस हो गया है इन स्पेंडिंग मनी, इन इन्वेस्टिंग. आई नो कि अब ये बिकेगा ही. इतना मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है अपने ऊपर कि जो भी आई डिसाइड इट हैज टू गो. बिकॉज कस्टमर्स की चॉइस बहुत वेरीड होती है. ट्रू. ये जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद आए या जो मुझे पसंद आए वो थर्ड पर्सन को भी पसंद आए. करेक्ट. तो उनके हिसाब से चलना, वो आपको स्टडी करना ही पड़ता है. मीन्स लाइक करेक्ट. कस्टमर चॉइस, कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करना ट्रू. बहुत डिफरेंट फर्स्ट होता है. लोग ना पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, उस पे ध्यान देना, मार्केटिंग पे ध्यान देना. फर्स्ट थिंग आपको पहले समझना चाहिए हु इज योर कस्टमर, आइडियल कस्टमर, हाँ जिसके हाँ लिए आपका प्रोडक्ट है. ये पहले यस चीज आपको समझ में आई, देन सारी चीजें अपने आप जगह पे प्लेस होती है. हाँ. एंड वन मोर थिंग प्रियंका, लाइक तुमने बोला था वर्कशॉप में बोला था कि आप अपना वो एआई पे ढूंढो कि कहाँ पे आपका कस्टमर है. ट्रू. मुझे सब जगह यही होता था कि कोरियोग्राफर्स, गरबा कोरियोग्राफर्स को रीच करो. एंड वो सबको आई डिड ट्राई दैट दिस ईयर. दिस वाज द फर्स्ट ईयर आई ट्राइड दैट. मैंने ढूंढ ढूंढ के अलग अलग लोगों से गरबा कोरियोग्राफर्स को लिस्ट बनाई, उनको अप्रोच अमेजिंग. किया. बट नाउ व्हाट आई फील इज कि हमको फॉरेन कस्टमर्स को ज्यादा अप्रोच करना चाहिए. ट्रू. लाइक बिकॉज चनिया चोलीज जो है वो फॉरेनर्स बहुत पसंद करेंगे. तो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आई वांट टू जस्ट अप्रोच फॉरेन कस्टमर्स थ्रू होटल्स और थ्रू अमेजिंग. टूरिज्म डिपार्टमेंट. Amazing. And for that, whatever the strategy, first make the strategy and accordingly, so set a funnel for that. For example, now you are having the choreographer ka database. हाँ Next time, whatever things you are selling, you have already have the database of choreographer. If those particular products are suitable for them, you can directly pitch them. हाँ यस You are having this set of products, maybe this could be helpful to your students. हाँ Just that is the win-win situation for them and you also. हाँ यस. Yes. Amazing. So same जो आपने अभी बताया था ना, so my question is related to that only कि ऐसा कौन सा advice है, what advice would you like to give other women who are hesitant to start business? सी प्रियंका, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे. Correct. कॉन्फिडेंस के संग काम शुरू करो. एंड जो कहावत है ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, आई बिलीव इन दैट. अगर आपने शुरू किया है और पूरा डेडिकेशन के साथ आप करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. एंड लेडीज शुड बी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट इन दिस एरा. आज की True. दुनिया में वी शुड टीच आवर डॉटर्स ऑल्सो टू बी इंडिपेंडेंट. एंड वो तभी होता है व्हेन वी हैव कॉन्फिडेंस एंड वी स्टार्ट समथिंग. डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट whatever you want to. और जिस चीज का पैशन है वही काम शुरू करो. You should get into it, and if you have a will you will definitely be successful. ये मेरा Amazing. कहना. अमेजिंग हाँ अमेजिंग. जैसे कि आपने बोला ना कि जिस चीज का पैशन है उसी चीज का आप चालू कर दो. द हाँ थिंग इज मोस्ट ऑफ द लेडीज ना उनको समझ में नहीं आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पैशन दे आर हैविंग, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन देयर माइंड कि बहुत सारा कंफ्यूजन कि करे क्या, करे तो करे क्या. एंड दिस हैपन्स एवरी जैसे मैंने मेरी भी जर्नी स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में ये मेरे साथ भी हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें इस चीज को. तो फॉर दैट जैसे कि वी डिड अवर चैलेंज, तो वो चैलेंज से मुझे समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द लेडीज हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो उसके हाँ लिए फॉर सिंपल सोल्यूशन आई मेड वन टूल, दैट इज द टूल नेम इज पैशन क्लैरिटी टूल. Okay, okay passion discovery test or passion clarity tool. So this is the tool basically. I will add the screenshot in because I cannot share my screen from here in this. Let me check if I can share.
I will show you that to you, so that yeah, this is the one, passion clarity test. Are you able to see my screen? नहीं, अभी आ रहा है. हाँ, yes. Okay, okay. This is the हाँ, Mompreneur passion clarity test. Okay. So this is the okay. test. They have to enter all the data, and at the end of this test, once they enter the data, na, they will get the clarity कि हाँ, उनका पैशन किस चीज में है. उनको क्या करना है एक्चुअली, जो चीज में Basically, मजा हाँ, आए, जो चीज में लाइफ एंजॉय करो. एंड correct. सेकेंडली, बीइंग अ वुमन, यू हैव टू टेक योर फैमिली अलोंग विद यू. जो चीज फैमिली परमिशन दे रही है, जो चीज में सब खुश हैं, वही चीज करनी चाहिए. Because with oppositions in the family or friends, you cannot succeed, True. especially the family. If they don't Everyone, support you, yes, yes, everyone family has to be on support, one page. yes, family support बहुत जरूरी है. True. तो passion with family support जहाँ पे है, आप जरूर successful होगे. That is And what I say. correct, correct. And one more thing कि initially ना, if you don't have that much confidence, तो family भी support नहीं करते हैं. In my case, हाँ, initially family was not supporting me at all. Okay, हाँ, but जैसे जैसे आप करते जाते हो, because you are confident, पहले वो हाँ, first step आपको लेना पड़ेगा, then only others will trust yes, you. yes, definitely. और Yes. बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके मत शुरू करिए जिससे कि आपको टेंशन हो. मीन्स लाइक True. बहुत आपने एकदम से बड़ा सा बिजनेस खोलना है करके, एंड यू आर स्पेंडिंग 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, एंड देन स्टार्टिंग अ बिजनेस. तो उससे, उस अमाउंट को खर्च करने से ही कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. True. इफ अगर जो कहते हैं ना कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं या जितने का हम रिस्क ले सकते हैं, उतने का ही रिस्क लेकर हमको स्टार्ट करना चाहिए. तो उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है. As you said, calculated risk. पहले उस चीज को समझो, हाँ, समझ के उसमें फिर जाओ आप. विदाउट हाँ, समझ के, बिना समझते हुए डायरेक्टली डोंट जंप इनटू द थिंग्स. पहले यस, समझो कि दिस चीज इज ये मेरे लिए भी है भी कि नहीं. हाँ. और मेरी लिमिट कितनी है, मीन्स टू, अभी मतलब हैप्पीली मेरी लिमिट कितनी है. Like today, I would like to really tell you that I started my business with only 10,000 rupees. Wow, the journey from 10,000 to 10 lakh, amazing. हाँ, And that 10 lakh within 30 days, that yes, that more than amazing. yes. So I'm so much happy and grateful that कि ये मतलब जो inspiration आपसे मिलती है ना हमें, because currently what's your age? Sorry to ask you this question, but I'm not yet 70, but nearing okay, 70. Yes. amazing. So देखो मतलब you are near to 70 and you are real inspiration for me. Thank you. Really. Really you are, and you looks like Sudha Murthy. I always say that ये हमारे अरे, सुधा मूर्ति जी है करके. सुधा मूर्ति तो is so great. उनके संग मत comparison करो. You are also on that path towards greatness. Thank you. And definitely next year more milestone we have to achieve. So as I Yes, told you, we have to hit the bigger number next year. yes, definitely. Yes, yes, अभी से amazing. प्लानिंग करूंगी. Yes, जून yes, से नहीं, जनवरी से ही प्लानिंग करूंगी. yes, है ना? amazing. Yes, हाँ, yes. So that's it for you guys. And ये हमारी अरुणा चंद्रा जी है. इनसे क्या क्या सीखा आपने आज के पॉडकास्ट से? So please do let me know into the comment section में आप आपके टेक अवेज बताना कि आपने इस पर्टिकुलर एपिसोड से, स्पेशली अरुणा आंटी से, आपने ऐसी कौन सी चीजें सीखी एंड कौन सी चीजें ऐसी है जो आप इंप्लीमेंट करने जाने वाले हो आपके बिजनेस में. प्लीज डू लेट अस नो इनटू द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रियंका.